Hi everyone, welcome back to my channel Psycue. So today in this video we will be talking about the theories of intelligence, and we will be taking into consideration the first part, that is the psychometric approach, and what all theories come under psychometric approach. अगर हम साइकोमेट्रिक अप्रोच की बात करते हैं तो साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या है? अकॉर्डिंग टू इट, इंटेलिजेंस इज कंसिडर्ड एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटी. बहुत सारी एबिलिटीज कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म इंटेलिजेंस. तो इट टेक इंटेलिजेंस एज अ सिंगल इंडेक्स. जो भी आपकी कॉग्निटिव क्षमता है, एबिलिटीज़ हैं, देयर इज लॉट ऑफ एबिलिटीज़ यू हैव, बट अगर हम साइकोमेट्रिक अप्रोच के बारे में बात करते हैं तो वो उन सब एबिलिटी को एज अ सिंगल इंडेक्स लेके चलता है, एज अ सिंगल एग्रीगेट एंड सम टोटल ऑफ all the abilities. Now coming to the various theories that come under psychometric approach, there are basically 5 theories that come under it. First is the uni or one factor theory. Second is the two-factor theory. Third is the theory of primary mental abilities. Fourth is hierarchical model of intelligence. And fifth is structure of intellect models. So we will be discussing all these theory one by one. Coming to the first theory, that is one-factor theory. This theory was given by Alfred Binet, and we have already done in our previous video how Alfred Binet defined intelligence. I will repeat it again. According to Alfred Binet, intelligence is the ability to judge well, to understand well, and to reason well. And we also learned that he was the first psychologist who formalized the concept of intelligence, taking into consideration the various mental operations. तो एल्फ्रेड बिनेट ने ही हमें बताया है कि हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोर इंटेलिजेंट एंड लेस इंटेलिजेंट इंडिविजुअल. लेकिन अगर हम यूनी और वन फैक्टर थ्योरी की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, ही कंसेप्चुलाइज्ड इंटेलिजेंस एज consisting of one similar set of abilities which can be used for solving any or every problem in an individual environment. तो according to him, intelligent person है, उसके अंदर एक जैसी एबिलिटीज़ होती हैं और वो एबिलिटीज़ उसको हेल्प करती है कि वो अपनी लाइफ में उसकी सिचुएशंस कोई भी आ जाए या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, वो उसको ईजिली सॉल्व कर पाए इन द इन्वायरमेंट ही और शी लिविंग. सो अगर हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो हाउ यू हैव टू डिफाइन यूनिफैक्टर थ्योरी. अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड बिनेट, ही कंसेप्चुलाइज इंटेलिजेंट एज consisting of one similar set of abilities which can be used for solving one or every problem in an individual environment. This is what all about UniFactor theory. Coming to next theory, that is the two-factor theory. Two-factor theory was given by Charles Perman in 1927. You have to remember the psychologist who gave these theories, and it is very important because it can come for 1 markers also in your examinations. So what did Charles Perman do? Charles Perman ने basically बहुत सारे statistical method का use किया अपनी theory में, लेकिन the thing that he particularly used was factor analysis, जिसके बेस पे उसने इंटेलिजेंस को डिफाइन किया. एंड अकॉर्डिंग टू हिम, इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ बेसिकली टू फैक्टर. फर्स्ट इज द जी फैक्टर एंड सेकंड इज द एस फैक्टर. जी फैक्टर इज द जनरल फैक्टर एंड एस इज द स्पेसिफिक फैक्टर. तो जी फैक्टर, जनरल फैक्टर, हर एक जो भी इंसान इंटेलिजेंट है उसमें वो जनरल फैक्टर होगा. जनरल फैक्टर मीन कि वो अपने मेंटल ऑपरेशंस का यूज़ कर रहा है एंड ही इज़ एबल टू थिंक रैशनली, प्रोड्यूस रैशनली. जो भी वो चीज़ें कर रहा है वो अपने मेंटल ऑपरेशंस को फॉलो कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस उस बेसिस पे अच्छी आ रही है. इट इज़ कॉमन इन एवरी इंडिविजुअल हु इज़ इंटेलिजेंट. लेकिन अगर हम स्पेसिफिक फैक्टर की बात करते हैं,
स्पेसिफिक फैक्टर बेसिकली इंक्लूड करती है सम स्पेशल एबिलिटीज. वी नो दैट दे आर आर्किटेक्चर्स, सिंगर्स, pilots, all those are coming in general factor because they are all intelligent enough because they have chosen these field and they have excels in their field. लेकिन अगर हम स्पेसिफिक फैक्टर की बात करते हैं तो बहुत सारे आर्किटेक्ट हैं, लेकिन उन आर्किटेक्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, वाई दे आर हैविंग देयर परफॉर्मेंस लेवल हायर, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ चीज़ें डिफर करती है. नो इंडिविजुअल आर सेम. तो इसीलिए उनके बीच में कुछ जनरल या कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जो उनको एक दूसरे से डिफर करते हैं. सो दैट्स व्हाई पीपल आर हाई इन सम स्पेसिफिक फैक्टर्स. तो दिस वाज द थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय चार्ल्स स्पर्डमैन. द नेक्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज व्हिच वाज गिवन बाय लुइस टंगस्टन. सो अकॉर्डिंग टू हिम, इंटेलिजेंस divided into 7 abilities. First is the verbal comprehension. Second is the numerical abilities. Third is the spatial relations. Fourth is the perceptual speed. Fifth is the word fluency. Sixth is the memory. And seventh is inductive. So these are the 7 abilities which define intelligence. So we will be discussing them one by one. First is the verbal comprehension. Verbal comprehension में basically क्या आएगा कि whatever you are learning, आप कैसे words को learn कर पा रहे हो, आपके concept clear हो रहे हैं, आपका क्या idea है, that is what will be included in verbal comprehension. Coming to next, numerical abilities. तो आपकी क्या speed है, आप कितनी accurately, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम दी जाती है न्यूमेरिकली, आप उसको कितनी सॉल्व कर पाते हो और कितना एक्यूरेट रिजल्ट निकाल पाते हो. नेक्स्ट इज द स्पेशल रिलेशन. स्पेशल रिलेशन होता है कि आप विजुअलाइजेशन पावर आपकी कैसी है, कोई भी आपको पैटर्न्स दे दिया है, कोई भी फॉर्म्स दे दिया है, तो आप उसको कैसे विजुअलाइज कर पा रहे हो. नेक्स्ट इज द परपेचुअल स्पीड. आप जो चीज़ें परसीव कर पा रहे हो उसको आप कितनी स्पीड में परसीव कर पा रहे हो. आप कुछ भी, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपकी परसेप्शन उस इंफॉर्मेशन को लेके कैसी है, हाउ यू आर ग्रैबिंग दैट परसेप्शन. नेक्स्ट इज द वर्ड फ्लुएंसी. जो भी वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर यूजिंग दैट वर्ड्स. आप उन वर्ड्स को कितने अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहे हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन और आपकी फ्लुएंसी कितनी अच्छी है वर्ड्स को लेके. मेमोरी इज हाउ एक्यूरेटली यू आर रिकॉलिंग द थिंग्स, वॉट एवर यू हैव लर्न, आप उसको कितनी अच्छे तरीके से रिकॉल कर पा रहे हो. एंड द लास्ट इज इंडक्टिव. इंडक्टिव इज बेसिकली जो भी रूल्स फॉर्म होते हैं, आप उनको कैसे ड्राइव कर पा रहे हो, आप उन रूल्स को कैसे फॉलो कर पा रहे हो और उनको अपनी लाइफ में कैसे पोर्ट्रेट कर रहे हो, एंड हाउ यू आर मूविंग अहेड वाइल फॉलोइंग ऑल दोज रूल्स. सो दिस इज व्हाट ऑल वाज देयर इन थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज. कमिंग टू द फोर्थ थ्योरी, दैट इज hierarchical model of intelligence. This theory was given by author Jensen. So he defined that abilities operates at 2 levels. One is level 1, that is associative learning, and level 2, that is cognitive competence. So associative learning, that is level 1. According to him, it's that कि output is basically equal to the input. वो आपका rote learning है. जो चीज़ें आप लर्न कर रहे हो वैसे ही आपका आउटपुट आ रहा है. जितना आपने लर्न किया उतना ही आपका आउटपुट है. तो आउटपुट और इनपुट इक्वल है. लेकिन लेवल 2, दैट इज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, उसमें उसने डिफाइन किया कि आउटपुट इज मोर देन इनपुट. वो ये नहीं है कि आप रोट लर्निंग नहीं कर रहे हो, आप अपनी मेंटल एबिलिटीज़ का यूज़ कर पा रहे हो, आप चीज़ों को परसीव कर पा रहे हो, सोच रहे हो, और फाइनली आप वो चीज़ें भी ग्रैब कर पा रहे हो जो आपने लर्न नहीं की है. आप अपनी मेंटल एबिलिटीज़ का प्रॉपर यूसेज कर पा रहे हो. दैट इज आउटपुट इज मोर देन इनपुट. This is what is told by author Jensen in his hierarchical model of intelligence.
Now the last psychometric approach theory is structure of intellect model. It was given by J.P. Gulford in 1988. So in his theory, he classified intelligence into 3 intellectual traits and 3 dimensions. First is the operations, second is the contents, and third is the products. Now we will be understanding them one by one. Operations क्या हो गया कि how you are responding, how a respondent is responding to a particular situations या particular problem, तो वो उस पर कैसे respond कर रहा है, क्या operation उस पर कर रहा है, उसकी memory कैसे work on कर रही है. अब कंटेंट क्या हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल, आपने वो मटेरियल कहाँ से ग्रैब किया है, वेदर यू हैव टेकन दैट मटेरियल विजुअली और ऑडिटरी, तो आपका कंटेंट कहाँ से आ रहा है, आपको वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है. एंड थर्ड इज द प्रोडक्ट, पहले अगर कोई ऑपरेशंस आया और उसकी इंफॉर्मेशन आपने ग्रैब की है, अब फाइनली उसका प्रोडक्ट आप क्या कर रहे हो, फाइनली उस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो. रिस्पॉन्ड कर सकते हो, मे बी योर रिलेशन विल बी नॉट हेल्दी विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, या आपके रिलेशंस बहुत अच्छे फॉर्मुलेट हो रहे हैं, जिस तरह से आप सोच रहे हो उसी बेसिस पे आपके रिलेशंस भी डेवलप होंगे. दिस इज व्हाट ऑपरेशन, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. तो ये सब आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है. आपके अंदर अगर ये 3 ट्रेड्स होंगे तो आप उसको ईजिली अपनी लाइफ में फॉर्मुलेट कर पाओगे. अकॉर्डिंग टू J.P. गल्फर्ड, जो ये उसका जो मॉडल था, इसमें बेसिकली 180 सेल्स हैं. दैट इज ही कैटेगराइज देम इनटू 6 into 5 into 6 categories. So total there are 180 cells in his model. So these were the 5 approaches or the theories of psychometric approach.